Hello dear students, welcome to my video lecture. So in today's video lecture I am going to explain harmonic function. This is second lecture of complex analysis. So in previous video lecture I have explained analytic function. Also I have explained complex variable, function of complex variable and Cauchy-Riemann equations. Okay. तो जैसे कि मैंने बताया था कि analytic function means what? So function which is differentiable. So differentiable function is called as analytic function, and there are two conditions of analytic function. One is necessary condition and second is sufficient condition. So necessary condition is that one function is analytic if it is differentiable, and second sufficient condition is if function is analytic then it satisfies Cauchy-Riemann equation. Also I have explained two important notes. If your function is differentiable, then it is always analytic. And मैंने यहाँ पर टू हेडेड एरो निकाला है because analytic imply differentiable. Okay? और you may say अगर आपका function differentiable है, then it always satisfies CR equation. If your function is differentiable, then it is analytic, and that's why it satisfies Cauchy-Riemann equation. But अगर आपका function Cauchy-Riemann equation satisfy करता है, then it may not be differentiable. It may not be differentiable. तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी इसके दो एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करके बताए, राइट? सो यहाँ पर हम हार्मोनिक फंक्शन देखने जा रहे हैं. So function phi satisfying Laplace equation. तो अब Laplace equation क्या होता है? तो अगर आप phi function के बारे में बोले, तो del 2 phi by del x square plus del 2 phi by del y square equals to 0. This equation is called as Laplace equation. इस equation को क्या कहते हैं? Laplace equation. So any function satisfying Laplace equation is called as harmonic function. और जैसे कि यहाँ पर हम फाई के पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई. तो आप पार्शियल डेरिवेटिव को थोड़ा सा डिफरेंट वे से भी डिनोट कर सकते हैं. तो आप यहाँ पर फाई को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. दैट्स व्हाई यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. डेल इंस्टेड ऑफ del 2 phi by del x square यू मे राइट phi सफिक्स xx. इसका मतलब क्या होता है? del 2 phi by del x square प्लस सिमिलरली फाई का अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, देन इट कैन बी रिटन एज फाई सफिक्स yy इक्वल्स टू 0. सो दिस इज अल्टरनेट वे ऑफ डिनोटिंग दिस पार्शियल डेरिवेटिव. नाउ हियर नोट टू इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग हार्मोनिक फंक्शन. So let f of z equals to u plus iv is analytic function, then its real and imaginary parts are always harmonic. Remember, real and imaginary parts of analytic function are always harmonic. So, अगर हम f of z equals to u plus iv के बारे में बात करें, तो इनके real and imaginary parts से u and v. That means u and v are harmonic functions. और u and v को हम harmonic कब कहेंगे? If they satisfy Laplace equation. तो u Laplace equation satisfy करता है, मतलब u xx plus u yy equals to 0. That means del 2u by del x square plus del 2u by del y square equals to 0. And अगर आप v के बारे में बात करें, then v also satisfy Laplace equation. So vxx plus vyy equals to 0. Okay. So remember this important note. And if f of z equals to u plus iv is analytic function, then its real and imaginary parts are harmonic conjugates of each other. हम u और v को क्या कहते हैं? Harmonic conjugates of each other. Okay. Now our next task is, अगर आपको either u दिया है या तो फिर v दिया है, दोनों में से अगर आपको सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन है, then and if it is asked to construct analytic function, then we use Milne-Thomson method. तो यहाँ पर हम
आगे मिलने थॉमसन मेथड स्टडी करने जा रहे हैं। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ मिलने थॉमसन मेथड? सो विद द हेल्प ऑफ मिलने थॉमसन मेथड वी कंस्ट्रक्ट एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इफ अगर आपको u की वैल्यू गिवन हो या तो फिर v की वैल्यू गिवन हो। ओके, एंड देयर इज अल्टरनेट एक और भी फॉर्म है मिलनेस थॉमसन मेथड का। अगर आपको u माइनस v या तो फिर u प्लस v की वैल्यू गिवन है, देन ऑल्सो वी यूज मिलने थॉमसन मेथड। सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर आई विल एक्सप्लेन मिलने थॉमसन मेथड इफ u or v is given. So let us see the working procedure. So to construct analytic function f of z equals to u plus iv if u or v is known. Suppose we have given u, अगर आपको u की वैल्यू दी हुई है and if it is asked to construct f of z, then here we apply Milnes Thomson method. तो देखिए u फंक्शन से हम सडनली डेल यू बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल वाई फाइंड करेंगे और डेल यू बाय डेल एक्स को ही आप यू एक्स डिनोट कर सकते हैं और डेल यू बाय डेल वाई को यू वाई भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, एंड सिंस एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक, तो एनालिटिक मीन्स व्हाट? डिफरेंशिएबल। सो दिस फंक्शन एफ ऑफ जेड इज डिफरेंशिएबल, दैट्स व्हाई एफ डैश ऑफ जेड एग्जिस्ट। सो एफ डैश ऑफ जेड इक्वल्स टू यू एक्स प्लस आई वी एक्स। ओके, बट यहां पर देखिए जैसे कि हमें u की वैल्यू नोन है, नोन वैल्यू कौन सी? u की वैल्यू। v क्या है? v अननोन, वी कांट नो व्हाट इज v, दैट्स व्हाई vx इज आल्सो अननोन, राइट? सो दिस इज आल्सो अननोन वैल्यू, बट आप इस अननोन वैल्यू को नोन वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CR इक्वेशंस। So as we know the CR equations, अपने पास दो CR equations होते हैं, right? So first CR equation is ux equals to vy and second equation is uy equals to minus of vx. ठीक है, तो यहाँ पर हमें vx की वैल्यू चाहिए, that means we use this equation. तो यहाँ से अगर आप vx की वैल्यू निकालेंगे तो vx is equals to what? Minus of uy. Okay. So Vx equals to minus of uy. अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे and that's why our f dash of z is equals to ux plus I times, अब Vx रिप्लेस हो जाएगा माइनस uy से, we get minus I times uy. और जैसे कि हमने ऑलरेडी ux और uy की वैल्यूज निकाली होगी, so we substitute those values in this equation. So I denote it equation number 1 and now we apply Milnes Thomson method. तो Milnes Thomson method अप्लाई करना मतलब x रिप्लेस हो जाता है z से और y रिप्लेस हो जाता है 0 से। ओके, so this is important step. So replace x by z, y by 0. That means अब इस इक्वेशन में x और y की टर्म नहीं रहेगी, तो इस इक्वेशन में सिर्फ z की वैल्यू रहेगी, z की टर्म रहेगी। ओके, सो दिस इज प्योरली फंक्शन ऑफ z, सो दिस इज f dash of z, राइट? सो बाय इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू z वी गेट रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन f of z। ओके, तो इस तरह से अगर आपको u गिवन है तो u से सडनली ux uy निकालेंगे, देन एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंशिएबल। तो ये डिफरेंशिएबल की कंडीशन हमने यहाँ पर लगा दी एंड देन वी अप्लाई CR इक्वेशंस, क्योंकि इसमें इन दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू अननोन रहेगी, तो उस अननोन वैल्यू को हम नोन वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे विद द हेल्प ऑफ CR इक्वेशन एंड आफ्टरवर्ड्स वी अप्लाई मिलनेस मेथड, दैट मींस रिप्लेस x by z, y by 0। और अगर आप पोलर फॉर्म यूज करते हैं, सपोज आपका फंक्शन पोलर फॉर्म में गिवन है, तो पोलर फॉर्म में आप क्या करेंगे? इफ u इज फंक्शन ऑफ r and theta, then in that case we differentiate u with respect to r, that means we find u r and u theta। ठीक है, बाद में यहाँ पर आएगा f dash of z equals to u r plus I v r। फिर से हम पोलर के जो CR इक्वेशन है उनको यूज करेंगे, नोन वैल्यूज में हम यहाँ पर इक्वेशन रिड्यूस करेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स जैसे कि हमने यहाँ पर x को
को z से रिप्लेस किया, y को 0 से रिप्लेस किया। पोलर फॉर्म में आप रिप्लेस करेंगे r को z से और थीटा को 0 से। ओके, मीन्स अगेन योर f dash of z becomes purely function of z, then we integrate it with respect to z, it gives us analytic function f of z। और सेम थिंग है अपन, अगर आपको v की वैल्यू गिवन है, जैसे कि यहाँ पर आपको u की वैल्यू नोन थी, अगर आपको v की वैल्यू नोन है, ठीक है, तो अगर सपोज यहाँ पर v की वैल्यू नोन है तो आप यहाँ पर फाइंड करेंगे del v by del x and del v by del y, that means vx and vy। ओके, then again function is analytic, so it is differentiable। अब यहाँ पर अननोन वैल्यू कौन सी है, v अगर नोन है that means vx की वैल्यू भी नोन है, तो अननोन वैल्यू कौन सी रहेगी, यहाँ पर ux की वैल्यू अननोन रहेगी। तो फिर से हम यहाँ पर अगर CR इक्वेशन का यूज करेंगे तो ux की वैल्यू क्या है, vy। तो आपका इक्वेशन आएगा, तो यहाँ पर आप लेंगे ux इक्वल्स टू vy और इसे हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो आपका f dash of z आएगा vy प्लस I टाइम्स vx। ओके, देन vx और vy की वैल्यू जो आपने निकाली है सब्स्टिट्यूट हो जाएगी इस इक्वेशन में, देन वी डिनोट इक्वेशन नंबर 1 एंड आफ्टरवर्ड्स वी अप्लाई मिलनेस मेथड, मींस रिप्लेस x by z, y by 0 and then integrate with respect to z, it will gives us required analytic function। So this is all about Milnes-Thomson method। Now I will take few examples। So first example is show that u equals to 4xy minus 3x plus 2 is harmonic। तो सबसे पहले हम हार्मोनिक वाला पार्ट यहाँ पर प्रूव कर लेंगे। तो हार्मोनिक कब रहेगा, u फंक्शन इफ इट सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन, और u फंक्शन के लिए आपका लैप्लास इक्वेशन रहेगा uxx प्लस uyy इक्वल्स टू 0। यदि uxx प्लस uyy की वैल्यू आपको 0 मिलती है देन दैट फंक्शन इज हार्मोनिक। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, हेंस कंस्ट्रक्ट करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन f of z। हार्मोनिक पार्ट होने के बाद आपको क्या करना है, हार्मोनिक एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। तो एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे मिलनेस-थॉमसन मेथड। ओके, मिलनेस-थॉमसन मेथड से हम f of z कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब लास्ट पार्ट है अल्सो फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। तो जैसे कि हमने देखा था कि f of z इक्वल्स टू u प्लस iv अगर एनालिटिक है देन u and v आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। ओके, तो u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या आएगा, v। तो f of z फाइंड करने के बाद लास्ट टास्क है फाइंडिंग वैल्यू ऑफ v। तो ये तीन टास्क हमें यहाँ पर परफॉर्म करने हैं। सो फर्स्ट पार्ट है हार्मोनिक का, तो लेट अस प्रूव हार्मोनिक। सो दिस इज गिवन फंक्शन, तो यहाँ से u फंक्शन से आप सडनली ux निकालेंगे, मींस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते वक्त आप y को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो अगर y कांस्टेंट है, ठीक है, तो y एज इट इज रहेगा, 4 भी कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, तो 4y एज इट इज रहेगा। तो x का डेरिवेटिव क्या आता है विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज 1। तो 4xy का डेरिवेटिव आएगा 4y माइनस 3x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव रहेगा 3। ओके, अब यहीं से हम uxx भी निकाल लेंगे। तो uxx मिलेगा, मतलब इस इक्वेशन को हम फिर से विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू x फिर से y क्या रहता है, कांस्टेंट। तो कंप्लीट 4y, ये कंप्लीट टर्म कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होता है, 0। और -3 तो कांस्टेंट ही है, वैसे ही कांस्टेंट है, तो उसका भी डेरिवेटिव आपको क्या मिलना है, 0। सो हियर uxx इज 0। अब हम चलते हैं vx की तरफ, सॉरी uxx निकाला हमने, अब हम चलते हैं uy की तरफ, क्योंकि हमें uyy भी निकालना है। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालते वक्त x कांस्टेंट रहेगा,
ठीक है, तो x कांस्टेंट रहेगा, मतलब 4x कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आता है 1, सो वी गेट 4x। और विद रिस्पेक्ट टू y -3x तो कांस्टेंट है, इसलिए उसका डेरिवेटिव आएगा 0 और +2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, अगेन डेरिवेटिव 0। अब फिर से हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो विद रिस्पेक्ट टू y फिर से 4x कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर uxx और uyy दोनों की वैल्यू क्या है 0। नाउ वी कंसीडर Laplace equation, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ Laplace equation। तो लेफ्ट हैंड साइड होती है uxx प्लस uyy। ठीक है, तो uxx की वैल्यू कितनी है 0 प्लस uyy इज आल्सो 0, सो हियर वी गेट 0। Therefore, uxx plus uyy equals to 0. That means u satisfy Laplace equation. And if u satisfy Laplace equation, that means u is harmonic function. Okay, hence u is harmonic function. ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हमें एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। तो जैसे कि हमें यहाँ पर u की वैल्यू गिवन है, ओके, अब टू कंस्ट्रक्ट एनालिटिक फंक्शन f of z which is equals to u plus I t। अब जैसे कि f of z एनालिटिक है, that's why it is differentiable, right? So f of z differentiable है, that means f dash of z exists। और यहाँ पर f dash of z की वैल्यू मिलती है ux प्लस I vx। बट यहाँ पर नोन फंक्शन कौन सा है, u इज नोन फंक्शन, बट u इज नोन, मतलब अननोन टर्म कौन सी है, v की टर्म जो है अननोन है, सो vx इज अननोन टर्म। अब इस अननोन टर्म को रिप्लेस करना है नोन टर्म में विद द हेल्प ऑफ कॉची-रीमन इक्वेशन। नाउ बाय यूजिंग CR इक्वेशन, तो अपने पास दो CR इक्वेशंस होते हैं, उन दोनों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ux इक्वल्स टू vy एंड uy इक्वल्स टू माइनस ऑफ vx। ठीक है, अब हमें vx को रिप्लेस करना है, तो यहाँ से आपको vx की वैल्यू मिलती है माइनस ऑफ uy। ठीक है, तो अब ये vx रिप्लेस हो जाएगा माइनस uy से, वी गेट f डैश ऑफ z इक्वल्स टू, हम चाहे तो इसे इक्वेशन 1 भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, सो f डैश ऑफ z आएगा ux माइनस I टाइम्स uy विद द हेल्प ऑफ CR इक्वेशन। ओके, आपने डायरेक्टली भी लिखा तो भी चलेगा, यूजिंग CR इक्वेशन f डैश ऑफ z इक्वल्स टू। अब ux की वैल्यू रख देते हैं, uy की वैल्यू रख देते हैं, तो दिस इंप्लाई f डैश ऑफ z इक्वल टू ux की वैल्यू है अपनी 4y माइनस 3 माइनस I टाइम्स uy की वैल्यू है 4x। ओके, अब यहाँ पर हमें लगाना है मिलनेस थॉम्सन मेथड। सो बाय मिलनेस मेथड अप्लाई करना मतलब रिप्लेसिंग x by z and y by 0। by Minn's method x equals to z and y equals to 0। We substitute these values in equation number 1। Therefore, equation 1 reduces to, अब x की जगह पर z रख देते हैं, y को 0 से रिप्लेस करते हैं, तो आपको f डैश ऑफ z मिलेगा। तो यहाँ पर y 0 हो जाएगा, देन -3 एज इट इज रहेगा, माइनस I इंटू 4x रिप्लेस हो जाएगा z। ओके, this is our f dash of z, and lastly we integrate this equation with respect to z। So on integrating with respect to z, अब f dash of z को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको f of z मिलेगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -3 माइनस 4iz dz।
अब यहाँ पर ऐड हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, बट यहाँ पर आप सभी टर्म्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए ये जो कांस्टेंट है ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगा। सो हियर आई राइट a प्लस ib कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, यहाँ पर हम ऐड करेंगे कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। नाउ वी इंटीग्रेट दिस फंक्शन, so f of z equals to -3 का इंटीग्रेशन आएगा -3z -4i कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और z dz का इंटीग्रेशन आएगा z²/2 प्लस a प्लस ib। सो वी गेट f of z इक्वल्स टू, और f of z मतलब u प्लस ib इक्वल्स टू -3। अब z जो है, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, या तो फिर आप यहाँ पर 4/2 को सीधा ही 2iz² लिख सकते हैं। तो दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। बट अगर आपको u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी पूछा है तो आप और भी प्रोसीड करेंगे। यदि आपको सिर्फ एनालिटिक फंक्शन पूछा है तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन स्टॉप हो जाएगा। बट अपना जो क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा है अल्सो फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, मतलब हमें v की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो u एंड v क्या है? u एंड v आर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ f ऑफ z। मीन्स अगर आप इस f ऑफ z के रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करते हैं तो आपका जो रियल पार्ट रहेगा दैट इज योर u, और जो इमेजिनरी पार्ट रहेगा दैट इज योर v। ठीक है, तो हमें कॉन्जुगेट u का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो u का कॉन्जुगेट आता है v। ठीक है, तो हमें अब फाइंड करना है v, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है f ऑफ z का। सो फॉर हार्मोनिक कॉन्जुगेट, for harmonic conjugate of u, we separate real and imaginary parts of f of z। अब रियल इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने के लिए आप z को रिप्लेस कर देंगे, सो पुट z इक्वल्स टू x प्लस i1, तभी जाके रियल इमेजिनरी पार्ट सेपरेट होगा। अगर आपका फंक्शन पोलर फॉर्म में है तो आप z इक्वल्स टू पुट करेंगे r e टू द पावर i थीटा, बट हमें कार्टेशियन फॉर्म ही यहाँ पर यूज करना है। So f of z equals to -3 टाइम्स z रिप्लेस हो जाएगा x प्लस i y से, -2i इंटू z स्क्वायर प्लस a प्लस i b। तो यहाँ पर f of z मतलब है u प्लस i b इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हम रियल टर्म्स कलेक्ट कर लेंगे, तो -3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा -3x -3iy, इमेजिनरी पार्ट है, हम इसे दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब यहाँ पर x प्लस iy का अगर आप होल स्क्वायर लेते हैं तो आपको मिलता है x² प्लस 2iy, सॉरी 2ixy प्लस i² y², बट i² की वैल्यू होती है -1, सो वी गेट -y²। अब इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं -2i से। यदि आप -2i से मल्टीप्लाई करते हैं then you will get -2ix², then -4i²xy, बट i² होता है -1, तो फिर से यहाँ पर आपको मिलेगा +4xy, नेक्स्ट टर्म मिलेगी +2iy²। तो इनमें से सिर्फ आप रियल टर्म यहाँ पर लिख देंगे, तो क्या है रियल टर्म? +4xy। ठीक है, और जो बची हुई टर्म है इसका रियल पार्ट है +a। अब हम टोटल इमेजिनरी टर्म्स कलेक्ट करेंगे, सो प्लस i टाइम्स, अब इमेजिनरी टर्म्स में आएगा -3y। हाँ, तो ये जो टर्म है हमने यहाँ पर लिखी है, तो इनमें से इमेजिनरी टर्म्स फर्स्ट और थर्ड जो है इमेजिनरी टर्म है, इनमें से हमने i यहाँ पर लिख दिया है, तो बीच में आएगा -2x²
प्लस 2y²। अब लास्ट टर्म में इमेजिनरी टर्म है प्लस b। तो और हमें मालूम है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर या तो फिर टू कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। ओके, सो बाय कंपेयरिंग real and imaginary part you will get u equals to minus 3x plus 4xy plus 8 and v equals to v मतलब imaginary part minus 3y minus 2x square plus 2y square plus v। तो यहाँ पर हमें u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब v निकालना है। सो दिस v is required harmonic conjugate of u। Okay, so in this way we apply Milnes-Thomson method and we construct f of z। अगर आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट पूछा है तो आप उसका रियल इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे। जो रियल पार्ट रहेगा दैट इज योर u एंड इमेजिनरी पार्ट इज योर v। ओके, सो इन दिस वे वी सॉल्व एग्जांपल्स विद द हेल्प ऑफ Milnes-Thomson method। So second example is construct analytic function f of z whose real part is। तो यहाँ पर हमें रियल पार्ट गिवन है। रियल पार्ट मीन्स u की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। सो रियल पार्ट इज माइनस आर क्यूब साइन 3 थीटा। तो यहाँ पर u की वैल्यू जो है पोलर फॉर्म में गिवन है, दैट्स व्हाई वी यूज CR इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। ओके, hence find harmonic conjugate। तो u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करना है, दैट मीन्स वी फाइंड वैल्यू ऑफ v। ओके, तो यहाँ पर हार्मोनिक वगैरह कुछ शो नहीं करना है। सो वी डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट एनालिटिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ मिलनेस मेथड। ओके, सो जैसे कि f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आई वी एनालिटिक फंक्शन है और यहाँ पर रियल पार्ट गिवन है, दैट मीन्स u की वैल्यू गिवन है। सो u इक्वल्स टू माइनस आर क्यूब साइन 3 थीटा। तो सडनली हम फाइंड कर लेंगे u r एंड u थीटा। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r लेते वक्त थीटा की टर्म कांस्टेंट रहेगी। सो साइन 3 थीटा एज इट इज माइनस आर क्यूब का डेरिवेटिव रहेगा माइनस 3r²। वैसे ही विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेते वक्त माइनस आर क्यूब जो है कांस्टेंट रहेगा और साइन 3 थीटा का डेरिवेटिव आएगा 3 cos 3 थीटा। अब यहाँ पर हम पोलर के CR इक्वेशंस लिख लेंगे। सो u r इक्वल्स टू 1 बाय r v थीटा and u theta equals to minus r v r। Now since f of z equals to u plus I v is analytic, that means it is differentiable। so f dash of z रहेगा u r plus I v r। but यहाँ पर हमें u की वैल्यू नोन है, मतलब यहाँ पर v r जो है v r it is unknown term, it is not unknown term। अब ये जो अननोन टर्म है ये रिप्लेस हो जाएगी नोन टर्म से। सो अगर आप ये वाला इक्वेशन ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें वी आर की टर्म है, तो यहाँ से वी आर की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस 1 बाय आर यू थीटा। तो ये जो वी आर है हमने रिप्लेस कर लिया है माइनस 1 बाय आर यू थीटा से फ्रॉम CR इक्वेशन। अब हम यहाँ पर यू आर यू थीटा की वैल्यू रख देंगे। So this is our f dash of z, we denoted equation number 1। अब मिलनेस मेथड लगाने के लिए r रिप्लेस हो जाएगा z से और थीटा रिप्लेस हो जाएगा 0 से। So we get minus 3 r रिप्लेस हो जाएगा z से, so minus 3z² into sin 0, क्योंकि थीटा 0 से रिप्लेस हो रहा है, so sin 0 minus I cos 0। बट sin 0 होता है 0 और cos 0 होता है 1। So we get minus 3z² into minus I, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, so we get I times 3z²। अब इस f dash of z को इंटीग्रेट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू z। तो f dash of z का इंटीग्रेशन रहेगा f of z, I into 3 जो है कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा और z² का इंटीग्रेशन आता है z³ अपॉन 3। अब ये 3 कैंसिल हो जाएगा प्लस यहाँ पर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर लेंगे, बट दिस इज कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट दैट इज a प्लस आई बी। सो f ऑफ z आपको मिलेगा I z³ प्लस a प्लस आई बी। सो दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। तो एक पार्ट जो है अपना कंप्लीट हुआ है। अब जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। तो
तो u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब हमें v फाइंड करना है। तो जैसे कि मैंने बताया था, अगर आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो आपको एफ ऑफ जेड के रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने पड़ते हैं, और फॉर सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ जेड। तो अगर फंक्शन आपका कार्टेशियन फॉर्म में है तो जेड रिप्लेस होता है x प्लस आई वाई से, बट अगर आपका फंक्शन पोलर फॉर्म में है तो जेड रिप्लेस हो जाता है r टाइम्स e टू द पावर i थीटा से, क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म, ये सभी फॉर्म आपको मालूम है ना। तो जेड हम रिप्लेस कर देंगे r e टू द पावर i थीटा से, बिकॉज आपका जो फंक्शन है पोलर फॉर्म में गिवन है। ओके, सो वी पुट z equals to, for complex conjugate, sorry, for harmonic conjugate, हम इस इक्वेशन को चाहे तो इक्वेशन 2 डिनोट कर लेंगे। तो फॉर हार्मोनिक कॉन्जुगेट वी पुट z equals to r e to the power I theta in equation number 2, hence f of z equals to I into z cube, z रिप्लेस हो जाएगा r e to the power I थीटा से होल क्यूब प्लस a प्लस i b, which is equals to I times r cube e to the power I थीटा का क्यूब आएगा e to the power I times 3 थीटा प्लस a प्लस i b। और जैसे कि आपको मालूम है e to the power I 3 थीटा को ही आप लिख सकते हैं cos 3 थीटा प्लस i टाइम्स sin 3 थीटा प्लस a प्लस i b। अब इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे i r क्यूब से, तो वी गेट i r क्यूब cos 3 थीटा प्लस i इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो r क्यूब sin 3 थीटा प्लस a प्लस i b। अब इनमें से हम रियल टर्म्स कलेक्ट कर लेंगे, तो रियल टर्म है माइनस आर क्यूब साइन 3 थीटा प्लस ए प्लस आई टाइम्स इमेजिनरी पार्ट आएगा आपका आर क्यूब कॉस 3 थीटा प्लस बी, एंड दिस इज योर एफ ऑफ जेड, और एफ ऑफ जेड मीन्स यू प्लस आई बी। और हमें यहाँ पर सिर्फ v की वैल्यू चाहिए, v मतलब इमेजिनरी पार्ट। So by comparing imaginary parts so left side का imaginary part है v and right side में imaginary part है r cube cos 3 theta plus constant of integration b, and this is required harmonic conjugate of u. Okay, so in this way we apply Milne's function method to construct analytic function as well as to find harmonic conjugate. Okay, so with this I stop my video lecture. Thank you very much.